Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter Central Islamic Land. My dear, as you know that according to CBSC new syllabus for class 11th, there were some chapters are reduced by CBSC. Chapter 1 is also deleted and chapter 5 is deleted. This is chapter 4, so that's why according to syllabus this would be your chapter 3, the Central Islamic Land. Okay. My dear, the Central Islamic Land. In this chapter, we will try to understand the history of Islam, the origin of Islam. The land where first time Islam emerged, we will try to understand. The revolutions, starting revolutions which happened in Islam. Also, we will discuss the Umayyad revolutions, Abbasid revolutions, caliphates, crusades, and such type of others. Dear, this is very interesting chapter, so you should read this. But here I want to inform you that when you will not read it properly, you cannot understand this chapter. आप जब तक इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आएगा. Okay, let's start your chapter. As we enter the 21st century, there are over 1 billion Muslims living in all parts of the world. They are citizens of different nations, speak different languages and races differently. Nation speak different languages and race differently. The process by which they became Muslim were varied, and so were the circumstances in which they went their separate ways. Yet the Islamic community has its root in the more unified past which unfolded the roughly 1400 years ago in the Arabian Peninsula. In this chapter, we are going to read about the rise of Islam and expansion over area of Islamic civilization from 600 to 1200. In these centuries, Islamic society exhibited the multiple political and cultural patterns. The term Islamic is used here not only in its purely religious sense, but also for all overall society and the cultural historical associated with Islam. In the society, not everything that was happening originated directly from the region, but it took place in a society. Their Muslims and their faith were recognized as a socially dominant. Non-Muslims and their faith were recognized as a socially dominant. Non-Muslims always formed an integral, if subordinate part of this society, as did Jews and Christians. My dear author want to inform you about this chapter in the very clearly that in the whole world, in the different continents, the Muslims were lived. Their language
their race, their some specific feature that is totally different, but they were Muslims. They are Muslims. आज 21st सेंचुरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। संसार के सभी भागों में मुस्लिम्स जो हैं उनकी संख्या 1 अरब से अधिक है। वे भिन्न भिन्न देशों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका पहनावा भी अलग अलग है। वे जिन तरीक़ों से मुसलमान बने वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे और वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी जिनके कारण वे अपने रास्तों पर चले। फिर भी मुस्लिम समाज की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित हैं, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले 1400 ईयर्स एगो अरेबियन पेनिनसुला अरब के प्रायद्वीप में हुआ था। इस अध्याय में, इस चैप्टर में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 600 to 1200 तक की अवधि में ये इलाका, ये क्षेत्र सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लामी सोसाइटी अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप इस्लाम में दिखाई देते हैं। कहते हैं तो एक बड़ा क्षेत्र है, एक वैरायटी, एक विविधता। द टर्म इस्लामिक इज यूज्ड हियर नॉट ओनली इन द प्योरली रिलीजियस सेंस बट आल्सो फॉर द ओवरऑल सोसाइटी एंड द कल्चरल हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद इस्लाम। इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसका सीधा उद्भव सीधे धर्म से नहीं था, बल्कि उसका उद्भव एक ऐसे समाज में हुआ जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौड़ सही, लेकिन हमेशा उस समाज के अभिन्न भाग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी। इस्लाम के बारे में अगर आप ब्लू जो दिया है उसको पढ़ेंगे, कहता है आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री of the Central Islamic land between 600 to 1200 based on the chronicles or the tawarikh which narrate event in order of time, and semi-historical works such as biographies, sirah, record of the saying and doing of the prophets, hadith, and commentaries on the Quran, tafsir. The material from which these works were produced was large collections of eyewitness reports, akhbar, transmitted over a period of time either orally on paper. The authenticity of each report, akhbar, was tested by the critical method which traced the chain of transmission, isnad, and established the reliability of the narrators. Although the method was not foolproof, the medieval Muslims' rights were more carefully in the selecting their information and understanding the motives of their information than the contemporaries in other part of the world. On the controversial issues, they reproduce the different version of the same event as they found in the source, leaving the task of judgment to their readers. Their descriptions of event closer to their own times is more systematic and analytical and less of the collection of akhbar. Most of the chronicles and the semi-historical works are in Arabic, the best being Turkish of the Tabari 923
See, which has been translated into English in 38 volumes. Persian chronicles are few, but they are quite detailed in their treatment of Iran and Central Asia. Christians' chronicles written in Syriac, dialect of Aramaic, are fewer, but they threw the interesting light on the history of early Islam. Beside the chronicles, we legal text, geographies, travelogues, and the literacy work such as the stories and poems. My dear, here the source of history, which gives us information about Islam. The point is that it 600 to 1200. So we are going to read about the sources which gives us information about history. इतिहास के हमें इस्लामिक इतिहास को जानने के लिए जो सोर्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस्लामिक क्षेत्रों के सन 600 टू 1200 तक के शासन के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों तथा तवारीख इट मीन्स जिन घटनाओं का वृतांत समय के अनुसार कालक्रम के अनुसार दिया जाता है उसे तवारीख कहते हैं। तो जो लिखे गए क्रॉनिकल्स और जो इतिवृत्त हैं उनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं। कुछ सेमी हिस्टोरिकल थिंग्स भी हैं, सेमी हिस्टोरिकल जो रिटन एविडेंस है वो भी हमें इसके बारे में सूचना देती है। ऊपर अगर आप देखें तो कहता है कि ऑन द क्रॉनिकल्स एंड तवारीख and semi-historical works such as biographies, such as hadith, between Sharia, Hadith, Akhbar, Tafsir. This is a semi-historical evidence which gives us information about Islam. जो अर्ध ऐतिहासिक चीज जैसे जीवन चरित्र है, बायोग्राफीज, जैसे सीरा या पैगंबर प्रोफेट के जो स्टेटमेंट थे, कथन थे, उनको हदीद कहा गया। कुरान के बारे में जो टीकाएं लिखी गई उसे तफसीर कहा गया। और इन कृतियों के निर्माण की सामग्री में जो किया गया, जो आंखों से देख के लिखा गया, उसे अखबार कहा गया। इनका बड़ा योगदान है। ये वृतांत विशेष कालावधि में मुख्य रूप से बताकर कागज के लिखित रूप में लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी प्रत्येक सूचना, ऐसे प्रत्येक इंफॉर्मेशन, ऐसे हर एक जानकारी की प्रामाणिकता की जांच एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन फॉर्म में समालोचनात्मक व्याख्या के आधार पर करके जो सूचना मिले वो इतिहास के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इन सब की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, जिसमें सूचना भेजने इसनाद की श्रृंखला का पता लगाया जाता था और ये बात कौन कह रहा है, वर्णनकर्ता, एक्सप्लेनर की विश्वसनीयता को स्थापित किया जाता था। तथापि यह तरीका नितांत दोष रहित था। लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचनाओं का चयन करने, अपनी सूचना देने के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य क्षेत्रों समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे। जो कंट्रोवर्शियल मैटर्स थे, कंट्रोवर्शियल मुद्दों के मामले में उन्होंने अपने सोर्स से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए और उन्हें परखने का कार्य किया। अपने रीडर्स के लिए उनको ये असेस करने के लिए छोड़ दिया कि क्या सही है और क्या गलत, ये आप तय करिए, उसकी व्याख्या करिए। उनके अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में वर्णन अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक तरीकों से किया गया है। ये अखबारों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रचनाएं जो अरबी भाषा में हैं उनका एक मिला जुला रूप है। उसमें सबसे अच्छी कृति कौन सी है? ताबरी की। तबरी जो 923 में लिखी गई, 38 वॉल्यूम्स में, इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ, फारसी में, फिर अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और फिर ये इतिहास का एक अच्छा सोर्स बनी।
My dear, I hope you are getting understand what I want to tell you. It means these are the sources. These are the sources which explained by me here, which gives us information about Islam. इस्लाम के बारे में हमको सोर्स बताते हैं, सूचनाएं देते हैं. Come to the main point of this chapter, the rise of Islam in Arabia, faith, community and politics. First of all, in the starting of this chapter, we will try to understand about Islam. We will try to understand about the life of Prophet Muhammad. During 612 to 32, the Prophet Muhammad preached the worship of single God Allah and the membership of single community of believers Ummah. This was the origin of Islam. Muhammad was an Arab by language and culture and a merchant. By profession, 6th century Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula and area of southern Syria and Mesopotamia. 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर, गॉड इज वन, दैट इज अल्लाह, अल्लाह की पूजा करने और जो आस्तिक थे, आस्तिकों के एक समाज का प्रचार किया. एक ऐसे समाज की सदस्यता का प्रचार किया जिसका मानना था कि भगवान एक है, उसे अल्लाह कहते हैं और सभी को इसी की पूजा करनी चाहिए. इस्लाम का यही मूल है. पैगंबर मोहम्मद एक व्यापारी थे और भाषा तथा संस्कृत की दृष्टि से एक अरबी थे. 6th सेंचुरी एडी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित थी. 6ठी शताब्दी ईस्वी की जो अरेबियन कल्चर थी वो एक स्पेसिफिक एरिया में डेवलप थी. सीरिया, मेसोपोटामिया और अरब प्रायद्वीप के क्षेत्रों में ही फैले थे. अरब के लोग कई कबीलों में बटे थे. प्रत्येक कबीलों का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था. प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो भूत सनम के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे. बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश थे, नोमैड्स थे, बद्दू या बेडोइंस थे, जो खाद्यान्न के लिए, भोजन के लिए, खजूर के लिए, अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे. रेगिस्तान में जो हरे भरे क्षेत्र थे, इन्हें कुछ वर्ड कहा गया, उन्हें नखलिस्तान कहा गया है. ओके, ऐसे हरे भरे क्षेत्र जो क्या हों, रेगिस्तानों में से एक वर्ड नखलिस्तान कहा गया है. द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, कबीला, each led by chief who was chosen partly on the basis of his family connections, but more for his personal courage, wisdom and generosity. Murawwa, each tribe had its own god or goddess who was worshipped as an idol, sanam, in a shrine. Many Arab tribes are nomadic Bedouins moving from dry to green areas, oasis, that is the Nakhlistan, of the desert in search of food, mainly dates and food aid for their camels. Some settled in cities and the practice trade and agriculture. Muhammad's own tribe Quraysh lived in Makkah and controlled the main shrine there, a cube-like structure called Kaaba, in which idols were placed. Even tribes outside Makkah considered the Kaaba holy and
installed their own idols at the shrine, making annually pilgrims Hajj to the shrine. Makkah was located on the crossroad of trade route between Yemen and Syria, which further enhanced the city's importance. The Meccan shrine was sanctuary haram where the violence was forbidden and protections given in all visitors. Pilgrimage and the commerce give the nomadic and sheltered tribes opportunities to communicate with one another and share their belief and customs. Although the polytheistic Arabs were vaguely so, my dear, पूरा अरब 600 टू 1200 के बीच, स्पेशली स्टार्टिंग टाइम 600 में कबीलों में बटा हुआ था, छोटे छोटे ग्रुप्स थे। ये ग्रुप्स के अपने कबीले, अपने सरदार होते थे। इन सरदारों की अपनी मान्यताएं थीं, अपने अलग गॉड और गॉडेस थे। गॉड और गॉडेस की अपनी मूर्तियां होती थी जिसे सनम कहते थे। ये लोग इनकी पूजा करते थे। अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में ये रेगिस्तानों में एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। ओएसिस एक जगह का नाम रहा, ओएसिस मतलब नखलिस्तान। प्रॉफेट मोहम्मद का भी अपना एक कबीला था जिसे कुरैश कबीला कहा गया। प्रॉफेट मोहम्मद का जो कबीला कुरैश था, इस कुरैश कबीले में इनके भी अपने भगवान थे। कुरैश मक्का में रहता था। वहाँ के मुख्य धार्मिक स्थल पर कुरैश का ही नियंत्रण था। इस जो धार्मिक स्थल था, इसका ढांचा क्यूबिक था, इसे काबा कहा जाता था, जिसमें तमाम सारी मूर्तियाँ रखी जाती थी, जिसे बुत कहते थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे और वे अपने भी सनम को, अपने बुतों को काबा में लाके रखा करते थे। हर वर्ष वह इबादत गाह धार्मिक यात्रा हज करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच व्यापारिक मार्ग के चौराहे पर स्थित था, इसलिए ये शहर और भी महत्वपूर्ण था। जो व्यापारी यमन और सीरिया के रास्ते से होकर जाते वो काबा में रुकते थे, मक्का में रुकते थे। इसलिए धीरे धीरे मक्का का महत्व बढ़ता चला गया। काबा एक ऐसी पवित्र जगह, हरम माना जाता था जहाँ पूरी तरीके से हिंसा वर्जित थी। वहाँ पे आए हुए सभी दर्शनार्थी, वहाँ पे आए हुए सभी जो रिलीजियस विजिटर्स थे, पर्यटक थे, जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पे काबा आते थे, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खाना बदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि जो पॉलीथिस्ट अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में स्पष्ट सी ही जानकारी थी। सारे अरब अल्लाह के बारे में, एक अल्लाह है, इसके बारे में सब नहीं जानते थे। संभवतः उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन मूर्तियां और इबादतगाहों के साथ इनका लगाव सीधे और मजबूत था। 612 के आसपास प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने आप को गॉड का मैसेंजर, खुदा का रसूल घोषित कर दिया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, सलात और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना, चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया था कि उन आस्तिकों उम्मा कि ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हों। मतलब ऐसे ग्रुप का जो एक अल्लाह को मानता हो, उसको एक सबके साथ यूनाइट होना है, जोड़ना है। सबके लिए एक सामान्य नियम होगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा,
सभी लोग एक ही भगवान अल्लाह पे विश्वास करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, खैरात बांटेंगे और साथ साथ जो दैनिक प्रार्थना है, सलात और मोरल वैल्यूज, नैतिक सिद्धांतों पर बल देंगे। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभ से वंचित महसूस करते थे। एक नई सामुदायिक पहचान को बांट देखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते उन्हें मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमान को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लग रहा था। उन्होंने नए धर्म मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने को मजबूर होना पड़ा प्रॉफेट मोहम्मद को, क्योंकि जो मक्का में लोग रहते थे उन्हें इस बात का बड़ा ही असंतोष था कि प्रॉफेट ने कहा कि एक ही अल्लाह है और बाकी सभी भगवान नहीं हैं, इसलिए हम सभी भगवानों को नकारते हैं, मूर्तियों की पूजा का विरोध करते हैं। इसलिए इन लोगों ने इस प्रॉफेट मोहम्मद का विरोध किया और प्रॉफेट मोहम्मद को 622 में मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा को हिजरा कहते हैं। हिजरा से इस्लाम में इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी की शुरुआत हुई। किसी धर्म को जीवित रहना, किसी धर्म को अधिक दिनों तक चलते रहना उसके अनुयायियों पर ही निर्भर करता है। उन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना भी जरूरी होता है जो एक धर्म के मानने वाले लोग हों। इनकी मजबूती के लिए, सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें या तो पीछे से विरासत में प्राप्त होती हैं या बाहर से प्राप्त होती हैं, अथवा जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद ने इन 3 तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। इसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना में जो पोलिथिस्ट हैं और यहूदी हैं, जोडिस्ट हैं, को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंदर लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्म कांडों, उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ा चढ़ाकर और परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और उसके अलावा खैरात, कर, ज़कात से जीवित रहा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों के निकट के जो ओएसिस थे, नकलिस्तान थे, उसमें वो छापे मारते थे, लूट मार करते थे और इन छापों और धावों से मक्का के लोगों की प्रतिक्रिया हुई और मदीना में यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हुई। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीले, अधिकांशतः बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया। जो बेडोइंस थे इस समाज में शामिल हो गए, इस्लाम बन गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो संरचित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में धीरे धीरे फैलने लगा। मदीना भी अब एक इस्लामिक राजधानी के रूप में स्थापित हुआ। इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया क्योंकि मुस्लिमों के लिए जरूरी था कि वो एक स्थल के मुँह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बहुत बड़े भाग पर नए धार्मिक समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिली। प्रारंभिक इस्लामिक राज्य और व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों के राज्य संघ में बनी रही। इस प्रकार प्रॉफेट मोहम्मद ने धीरे धीरे इस्लाम का एक्सपेंशन किया। प्रॉफेट मोहम्मद को इस्लाम को उत्पन्न करने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद ने इसे बड़े ही सावधानी से, सफाई से इसको किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।